क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है गाइस ये, एंड 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 0। देखो यहाँ पे ध्यान से, बोल रहा है if consistent, if what, if consistent find solution graphically, find solution graphically। अभी बेटा कंसिस्टेंट होगा ना, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है बेटा, कंसिस्टेंट की इनको यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन में से कोई सी लाइन होगी तो उसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ गए? यस, कंडीशन ऑफ व्हाट, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। The value of a1 a2 is what, 2 upon 4। yes, minus 1 upon कैंसल हो जाएगा, माइनस में माइनस, यस और नो? अभी डायरेक्ट कर दिया हमने, माइनस 6 बाय माइनस का 4। टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 2 3 या 6, 2 2 जी 4, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। देखो बेटा a1, so a1 a2 is not equal to b1 upon b2, so this is the condition of what, if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, so it follow are you serious intersecting lines? Yes sir. Parallel lines. Intersecting or parallel? So intersecting. Intersecting. So what? Intersecting lines. These intersecting lines. Therefore, इसलिए क्या है? Consistent है? Consistent है। तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कर लोगे क्या? ग्राफ कॉलम्स, यस, चलिए सी, इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, 2x माइनस y माइनस का 6 जा के व्हाट, प्लस का 6, 4। इसके बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन, जीरो, यस प्लस का y, कहाँ बेटा प्लस का है? जीरो, 2 इंटू 0, तुम कितने बड़े ज्ञानी हो लिटरली बेटा, पता है ना, मतलब तुम 2 0 0 होता है, प्लस का 0 तो प्लस का, सो y the value is what, 6। सिमिलरली कुछ और भी तो ले सकते हैं। हाँ, कुछ और भी ले सकते हैं, बिलो देन 6, 3 ले लो, तो थोड़ा पेन ही बंद हो जा रहा है। 2 3 जा 6 से 6
कैंसिल, y का वैल्यू 0. दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन. सिमिलरली साइड में इक्वेशन नंबर 2, 4x minus 2y 4. The value of x is what we are putting. पहले बालिका ने बोला. Next time 1. 4 2 जा 8. Plus का 8 moving this side, so what? Minus का 8. 4 minus 8. 4 minus 8. Minus का 4. Great. माइनस का 2 डिवाइडेड माइनस का 4. सिर्फ 2. कर हर मैदान फतेह. खैर 1 पीयूष ने बोला था 1 रखेंगे, रखा पीयूष. 4 1 जी 4. 4 से 4, 4 से 4 कैंसल. सो y का वैल्यू इज व्हाट? देख बेटा 4 इंटू 1 जा -2 इक्वल टू में 4. यस 4 -2 इक्वल टू में 4. 4 से 4 कैंसल. सो माइनस का 2 इक्वल टू में व्हाट 0. तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिवाइडेड बाई 2. 0 बेटा क्या आएगा? 0. यस ये कर लो, ये आता है ना माय डियर. अभी तो नहीं, इट इज वेरी इजी माय डियर ना. हाँ ये तो ब्रेन में करने का. यू नो व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ ग्राफ, दैट इज योर पार्ट. ओके, डू इट फास्ट. विद इन 2 मिनट्स में आप करेंगे ये. Yes. In this question we have half the perimeter of the rectangular garden. This is question number 5 of exercise 3.1 and half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. ये छुप गया थोड़ा सा बेटे. This is what 36 meter. Find the dimensions of the garden. हमें dimensions find करने किसके garden के. तो बेटे सबसे पहले first of all एक which things you need to understand, which is what? First is what? Rectangular garden क्या होता है? सबसे पहले rectangle क्या होता है? Rectangle. This is the figure of what? Rectangle. This is what? Rectangle. This is what? Rectangle. Okay. In rectangle there are 2 dimensions. Dimensions meaning what? What is dimensions? The meaning of dimension is what? Length and breadth. Rectangular are made up of 2 things, length and breadth. Okay? This is never be considered as length. This is always considered what? Breadth. Let's take the example practical. You know what is this? Is the practical example of rectangle. This is always considered as breadth and this is always considered as length. You know what this? Let's consider this is the rectangle. This is also shape of the rectangle. This is always considered as a breadth, and this is always considered as the length. Length is equal to breadth. श्रुति आर्या बोल जल्दी से बेटा, जल्दी बोलो. Length इक्वल है क्या breadth के? बताओ जल्दी से. आंखों से तो दिख रहा है उसके ऑब्जर्वेशन की भी आप. ये इसके बराबर है क्या? Length is equal to breadth? नहीं. हम जितने लंबे हैं उतने क्या चौड़े भी हैं? नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ. लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होगी? अधिक होगी, ज्यादा होगी. ओके. तो लेंथ का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के फॉर्मूले को हम डिस्कशन करते हैं. रेक्टेंगल एक 2D फिगर होता है जिसमें 2 डायमेंशन ही आपको दिखाई देते हैं. कोई ऐसा पुरुष सज्जन बोले कि सर मुझे लेंथ और ब्रेथ के अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है. एक लेंथ है और एक क्या है? ब्रेथ है.
एक लेंथ है, क्या है, ब्रेथ है, एक लेंथ है, क्या है, ब्रेथ है। सो यहां से फॉर्मूला बना, एरिया इज व्हाट, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। अनदर वन इज व्हाट, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर मीनिंग इज व्हाट, बाउंड्री, 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 एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, एक बाउंड्री देखो लेंथ कितनी बार है बेटा, एक लेंथ यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पे, एक लेंथ कितनी लेंथ होगी, दो, दो लेंथ, और एक ब्रेथ ये है और एक ब्रेथ ये है, तो दो ब्रेथ होगी, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ जो है वो क्या है बेटा, 36 मीटर है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज व्हाट, 36 मीटर। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ईशान कपूर, वेरी सिंपल, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, इक्वल्स टू, बिकम्स का मीनिंग इज व्हाट, इक्वल्स टू। अब देखो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, जोर से बोलो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन का माने लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। बोलो डायमेंशन मीनिंग, डायमेंशन मीनिंग, डायमेंशन मीनिंग, डायमेंशन मीनिंग, डायमेंशन मीनिंग, डायमेंशन मीनिंग, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंथ ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रीथ मत देना, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना, लाइक कहीं यहाँ ध्यान लगाओ। तो लेंथ, लेंथ को हम क्या कंसीडर करेंगे श्रुति, लेट बी द लेंथ x, let be the length is what, x meter, and breadth is equals to what, y meter, okay, according to question। हाफ का मीनिंग होता है 1/2। किसी और को पता है बेटा ये, मतलब मेरे कहने का मैं सबको पता होना चाहिए 1/2, मतलब ये कहां से आया, कैसे आया, लिखा है ना, हाफ द पेरीमीटर। हाफ किसका, पेरीमीटर का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है, अच्छा इसको ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिख लेना, एल भी लिख लेना यहाँ पे, इसको बी लिख लेना बेटा। अबे क्या बन गई, एक्स मीटर और ये वाई मीटर। लेंथ को हमने कंसीडर क्या करा है बेटा, एक्स प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या कंसीडर करा है बेटा, वाई, इक्वल्स टू हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, 6 is what, 36। इन एग्जाम में हाफ का हाफ लिखा आपने, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा आपने, इज को इक्वल टू लिखा आपने, और 36 को 36 लिख दिया। समझ जाओगे ना, समझा, समझ गए। ये लाइन कहां से बनी, कैसे बनाऊंगी या कैसे बनाऊंगा मैं, कोई परेशानी बेटा आपको, कैसे बनी, इसी बात पर एड आउट करो। हाथ से चालू कर ले बेटा, वो पहले से चालू कर रहा है, कौन जाए उतनी दूर तक। हाँ बेटा, सर ये कैसे आया, ये कैसे आया सर, ये मैं घर से लेकर आया था अपने, ये कहाँ से, ये फॉर्मूले से आया, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। x कहाँ से आया, क्योंकि लेंथ को हमने क्या माना है, x मान लिया, लेंथ को क्या मान लिया, x, एंड ब्रेथ को क्या मान लिया, y, इज इट। चलिए, ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओके, सो व्हाट, 2 से 2 स्वाहा हो गया बेटा, बचा क्या, x1g x, y1g y, 36, इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे बनी, इज इट फाइंड। अब आगे क्या करना है हमें बेटा, हाँ ये देखो यहाँ मेंशन है, हुज लेंथ, ससुरा जब फॉर्म में आया था तो पेंदी बंद होता है हमारा चलना, हुज लेंथ
whose length is 4 meter more than length breadth से length width से कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है कितनी ज्यादा है 4 मीटर कौन लेंथ क्या है x एक बार गिरा दे बेटा लेंथ क्या है हमारी बेटा x है बोल रहा है लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन विड्थ और विड्थ को क्या माना है शिवा क्या नाम है बच्चा तुम जो भी है तुम ठीक है विड्थ को हमने क्या माना है 36 अरे बेटा विड्थ को क्या माना है बाय बाय इसको विड्थ कर लेना WIDTH इज इट ये कैसे आई इक्वेशन एक हाउ वी कैन मेक दिस इक्वेशन इतना आप कर लोगे एग्जाम में टेस्ट में घर में जब सॉल्व करोगे तो ये बनाना आ जाएगा आपको बेटा देखो वेरी सिंपल लेंथ इज मोर 4 विड्थ वेरी इजी ये फर्स्ट तो क्या होगी सेकंड होगी अब कुछ नहीं है ये इरेज कर दे बेटा ना अब इसके बाद हमें फाइनली क्या बनाना है बेटा ग्राफ डेडिकेटेड ग्राफ बनाना है फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सी देखो बेटा ये प्लस का वाई हियरार्की ऑफ व्हाट प्लस का हियरार्की ऑफ व्हाट माइनस भगवान ये खुद ही गिर जाए कहाँ गया ये रहा इक्वेशन नंबर 1 हमारी कहाँ गई बेटा ये x plus y इक्वल टू 36 x plus y इक्वल टू में 36 अब बेटा हम इसके क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे ना इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे बॉक्स इससे थोड़ा बनाएंगे बॉक्स यस 36 x का वैल्यू 0 पुट अप करा हमने x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या आ गया 36 ओके whenever we are putting the value of what अगर हमने x का वैल्यू 36 ही रख दिया क्या रख दिया 36 यही रख दिया तो y का वैल्यू क्या आएगा यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y y का वैल्यू 0 नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड x माइनस y इज इक्वल्स टू में 4 सो हियर इज 4 x और y की 4 का मतलब भी बताएगा क्या है 4 का मतलब क्या आएगा द मीनिंग ऑफ 4 इज व्हाट x की वैल्यू और y की वैल्यू सबट्रैक्ट होने पर कितनी आएंगी अगर x की वैल्यू 12 रखी तो y की वैल्यू क्या होगी श्रुति इफ द वैल्यू ऑफ x इज 12 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कपूर 8 समझ गए ना 12 माइनस 8 4 बट सब y को माइनस 8 x का वैल्यू 12 रखा बेटा हमने ओके ये प्लस का 14 12 पे इधर जाके माइनस मैं लिखूंगा नहीं आप समझ जाओगे ना बेटा प्लस का 12 मूविंग इन दिस साइड 4 माइनस 12 8 बचेगा ना हाँ माइनस का 8 माइनस का 8 और माइनस का y तो माइनस से माइनस कैंसिल सो प्लस का 8 इज इट एंड x का वैल्यू हम अगर 8 पुट अप करते हैं क्या पुट अप करते हैं बेटा 8
प्लस का 8 मूविंग इन दिस साइड. ईशान आप लोग यस. 4 minus 8. 4 minus 8 what? -4. एक बार में सही आंसर करना है बेटा. ठीक है. जो सपने में आएगा तुम्हारे. ठीक है. कौन आएगा? वो कौन सा नाटक है वो? जो भूत वाला ब्रह्म राक्षस. मजाक कर रहे हैं. ठीक है. सर आप क्या क्या बातें कर रहे हो? सब आपके सपने में आएंगे. ये थॉमसन आएंगे और एल्बर्ट आइंस्टाइन आएगा टकला. ठीक है. समझ में आ रहा है आपको? खैर साइंटिस्ट लोगों को कभी भी मजाक में उड़ाना चाहिए. ठीक है. कभी कभार चलता है. ठीक है. तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस के हम क्या बनाएंगे? आप ग्राफ बनाएंगे. वो भी देख लो बेटा आप कैसे बनाएंगे. व्हाट इज द रिलेशन 36 12 8 4 4 8 12 36? 4 8 12 36 में क्या रिलेशन है? 4 8 12 36. सर वो 4 के टेबल में आते हैं. आज तो यार आपने मतलब दिल जीत लिया यार बेटा. इधर आओ. आ जाओ इधर आ जाओ. कम हियर. शाबाश बेटा शाबाश. Great. अच्छा व्हाट आई कंसीडर माय डियर आई एम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. हमें लग रहा था यू आर ट्राइंग टू से सर ये सब इवन नंबर है. हम ये बोलने वाले थे लेकिन आपने सही जवाब करा. सर दीज ऑल नंबर आर कम्स फ्रॉम 4 टेबल. ओके बेटा. 4 भी 4 के टेबल में आता है. 8 भी 4 के टेबल में आता है. 12 आल्सो 36 आल्सो. ओके. ये भाई नोक अंदर करके बोल. एसी सामने कर बोल. सर y की वैल्यू पे 8 होगा तो सर वो -8 हो जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा. प्लस का 8 जरा के माइनस का 8. हाँ तो माइनस है ना यहाँ पे तो इस माइनस वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा. ए भगवान ये क्या हुआ. ग्रेट. अब हम बनाएंगे बेटा क्या यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ना. आज फुल फॉर्म में है आप लोग. यार the value of x will be what is the highest value of x in from the box equation number 1? 36. Y axis x axis. x का वैल्यू इज व्हाट? 4 से ले लेते हैं हम. 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 9 जा 36. भारत आजाद कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? यही बात हमारे फ्रेंड से सर ने पूछी थी क्लास में. तो हमारे फ्रेंड का जवाब सुनो. वो था इंग्लिश मीडियम का. वो बोलता 1947. ठीक है. हाँ. अच्छा वो प्राणी कहाँ का रहने वाला है? वो प्राणी भोपाल का ही है और उसके फादर जीआरपी कॉलोनी में. उसके फादर अभी पुलिस में. लेकिन अभी अच्छा मुझे लगा कि ये भी बोल रहे हैं सर मैं भी 1947 बोल के बताता हूँ. हाँ बेटा जाओ. खतरनाक इंसान है. अभी कम से कम 1 लीटर की बोतल इसने खत्म कर दी. दोनों खत्म कर दी इसने. यार इसमें बन हो गया. ये हो गया बेटा. अब y की वैल्यूज को हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है. y की वैल्यूज को देखो. y की वैल्यू 36 हाईएस्ट है और 4 से स्टार्टिंग है. तो 4 का टेबल यहाँ पर भी पढ़ो. 4 से स्टार्टिंग है और हाईएस्ट कहाँ तक गई है? 36 तक गई. 4 1 जी 4 4 2 जी 8 4 3 या 12 4 चौको 16 4 5 जा 20 4 6 24 4 7 जा 28 4 7 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36. वैल्यूज को प्लॉट कर लोगे बेटा आप लोग की मैं कर दूं? ओके करते हैं. देखो
बेटा नेगेटिव वाली नहीं बनेगी ना इसमें, हमारे पास वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ओवर हियर. ओके, जीरो कॉमा 36. जीरो एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ है बेटा, एंड वाई का वैल्यू क्या चाहिए हमें 36. देखो जीरो तो हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे लेकिन 36 पर प्लॉट कर देंगे. तो कहाँ होगा, श्रुति बोलेगी सर अरे सर यहीं पर होगा ना, x का वैल्यू जीरो, इसी पर जीरो होगा. तो पहले जीरो लिखेंगे फिर 36 लिखेंगे. जब्बा, x का वैल्यू 36 हियर एंड y का वैल्यू जीरो. सो x का वैल्यू 36 कहां पर होगा, x एक्सिस पर होगा. y का वैल्यू जीरो कहां होगा, यहीं पर होगा. समझ गए, जीरो उसी पर होता है, एक ही कोऑर्डिनेट पर दोनों लाई करते हैं. सर अब हो जाएगा. आप कर लोगे ये सब. ये वाला 4 तो माइनस का होगा. कैसे होगा बेटा माइनस का, देखो ना x का वैल्यू हमने यहाँ पर 8 पुट अप करा, 8, ये प्लस का इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का 8. 8 माइनस 4 तो माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का y. ठीक है बेटा, अब इन दोनों को पता है मिला दो मैंने, बेचारे बहुत लंबे समय तक इन लोगों की, ठीक है, बातें बनती. आइए मिल जा, ये मिल जा, इसको और एक्सटेंड करना यू हैव, ठीक है. एंड नाउ दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हिच वन, व्हिच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो व्हाट x प्लस y, बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू में व्हाट 36. सिमिलरली अब मैं सेकंड भी कर देता हूँ, तब क्यों छोड़ूंगा. x का 12 y का 8. चलो आप ये प्लॉट कर लोगे. And this chapter is done, this exercise is done. 2 question is remaining, so you have to be on your own basis, Mari, because this question have specifically separately we are write the examples of parallel lines and coincident line example and intersecting line example. We are solving a lot of questions, so that makes very easy for us to moving ahead. So question number 6, all parts is homework, and 7 is cut, my dear. Okay, if you want the explanations, I am definitely I'm giving the explanation, my dear. You want explanation, do it fast. वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट. जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर. बाय बाय.